हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। कल हमने ये सीखा था कि अंडर रूट 2 जो है वो कैसे इरेशनल नंबर है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है ना। आज हम जो है वो आगे सीखेंगे कि अंडर रूट 5 जो है वो कैसे इरेशनल नंबर है। ठीक है। अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 3 जो है वो आपको कल होमवर्क के लिए दिया था। ये मैंने जो है वो आज टाइम थोड़ा सा कम होने की वजह से जो है वो पहले ही ऐसे लिख के अब एक्सप्लेन करना है। सेम वापस से वही मेथड है, तो रिपीट करने के लिए आपने अगर अंडर रूट 2 को जो है वो अच्छे से समझा होगा तो अंडर रूट 5 भी जो है वो समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे, लेट अंडर रूट 5 इज़ ए रेशनल नंबर। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अंडर रूट 5 कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू एंड लेट देयर इज सम कॉमन फैक्टर एंड इफ यू डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इट देन दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म a upon b, okay, where a and b both are integer and b both are now co-prime number. Okay, if there was any common factor we have just cancelled that and this is the simplest form. Okay, so now there is no other common cofactor common factor and b must not be equal to 0. Okay, now root 5 equal to a upon b and now we square both of side, then it will be 5. Okay, and this will be a square upon b square. Now simplify, we can show that a square is divided by 5, then a will be also divided by 5, and here we can write down, if we divide 8 by 5 then it will be like quotient will be c, so a can be written in form of 5c. Okay, and if we replace the value a, okay, here in equation number 1, so we will get b square equal to 5c square. Okay, and if we if we divide it by 5, so it will be b square upon 5 equal to c square. If we divide b square by 5 then we'll get c square. Okay, it means b square is divisible by 5, so b square if divisible by 5 then b will be also divisible by 5. Okay, now here this line is important because we have assumed that we have first of all, as we have assumed that it was a rational number, so a and b must be co-prime number, but here we got that a is also divisible by 5 and b is also divisible by 5. It means 5 is common factor in a and b. So now our assumption gone wrong. Why? Because a and b now here they are not a co-prime number. Okay, and b are not co-prime number, so our assumption was wrong. What was our assumption? Our assumption was that under root 5 is a rational number, so it was wrong. That's why under root 5 will be a irrational number. Okay, hope so you got it. Okay, and now we have some other problems. Okay, if you if you operate any irrational number, any operations, we have plus and minus. So if you plus any number in irrational number or you subtract any number from irrational number, that will be definitely irrational number. Okay, there must be a condition that must be excluded. The number must not be itself. Okay, if you just subtract a number, irrational number, from itself, then we'll get 0. Okay, and 0 is a rational number. ठीक है, तो अपने पास में 0 क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी कुल मिला के बात ये है कि अगर आप प्लस और माइनस करोगे किसी भी इरेशनल नंबर को तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर ही होगा अपने पास में। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे तो भी इरेशनल नंबर आएगा, है ना, अगर प्रोवाइडेड, है ना, जो है वो टर्म कैसे नहीं होनी चाहिए, लाइकवाइज नहीं होनी चाहिए। लाइकवाइज का मतलब जैसे यहाँ अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई या डिवाइड ऐसी कोई टर्म नहीं होनी चाहिए ना। जैसे अपने पास में यहाँ पे अंडर रूट 5 है तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर, है ना। तो अंडर रूट 5 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे कोई भी नंबर है तो लाइकवाइज रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो तो अपने पास में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा अपने पास में, इरेशनल नंबर ही आने वाला है, ठीक है। अब अपने पास में एक क्वेश्चन ऐसा है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 जो है वो इरेशनल नंबर है, कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो लेट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज़ रेशनल। हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि ये जो क्या है अपने पास में रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो मुझे बताओ यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू a अपॉन b, ठीक है ना। इस अंडर रूट 3 को उधर लेके गए और इसे a माइनस b को यहाँ पे लेके आए, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये b इधर और ये 1 इधर, तो 5b माइनस a अपॉन में b इक्वल टू अंडर रूट 3। अब देखो यहाँ से ना अपने पास में 5 भी क्या है, एक इंटीजर है, और ये भी अगर हम इसको अज्यूम किया है a अपॉन b, तो a अपॉन b भी दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे, क्योंकि अगर रेशनल नंबर है तो इंटीजर होंगे।
तो यहाँ पे ये A5 B और A ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो 5B माइनस A अपॉन B ये कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। इंटीजर को आप प्लस माइनस करके कैसे भी करोगे तो वो सारे नंबर कैसे बनाएंगे, रेशनल नंबर बनाएंगे, है ना। अब इधर तो अपने पास में क्या है, रेशनल, और इधर क्या है अपने पास में, इरेशनल। और आपको पता है कि रेशनल नंबर कभी भी किसके इक्वल नहीं हो सकते, इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, but under root 3 is a irrational number, so rational number cannot be equal to irrational number. That's why our assumption was wrong. What was that? 5 minus under root 3 is a rational number. It was wrong. So 5 minus under root 3 is an irrational number 5. Okay, so that was our question, and some more examples are also there, and you have to do just like next example we have, that is 3 plus under root 2 under root 5. Okay, 3 plus 2 under root 5. You have to show this is an irrational number. आपको ये शो करना है कि ये क्या है, अपने पास में एक irrational number है, ठीक है। तो we'll start from the same line. Let 3 plus 2 root 5 is a rational number. Okay, if it is a rational number, then we can show in form of P upon Q. So that can be written in form of P upon Q. Okay, so simply just transposition this P upon Q in this side, like 3 in that side, so it will be 2 root 5 equal to P upon Q minus 3. P upon Q minus 3. Okay, so that will be P minus 3Q upon Q. Okay, and this 2 will go and divide, so it will be P minus 3Q upon twice of Q. Here we know that P, Q, 2, okay, and this 3 all are integers. अगर ये सारे के सारे अपने पास में इंटीजर्स है तो मुझे बताओ यहाँ पे P माइनस 3Q अपॉन में 2Q ये क्या हो जाएगा अपने पास में, इज़ ए रेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा अपने पास में, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। बट क्या लिखेंगे, अंडर रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। अंडर रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है अपने पास में, है ना। और हम ये जानते हैं कि इरेशनल नंबर जो है वो कभी भी क्या नहीं होता है, इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होता है किसके, रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है ना। तो ये अपने पास में जो यहाँ से अपने जो है आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे अपना जो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, इधर तो रेशनल आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, इरेशनल ना। तो रेशनल और इरेशनल जो है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे इसको क्या एज्यूम करके चला था, इसको रॉन्ग एज्यूम करके चला था, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, और एजम्पशन वाज रॉन्ग। अब अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, इसका मतलब क्या रॉन्ग था कि ये एक रेशनल नंबर है ना। तो राइट क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 5 इज़ इरेशनल, है ना। ये क्या होगा अपने पास में, इरेशनल होगा, ठीक है ना। आई होप कि समझ में आया होगा। और ऐसे जो है आगे कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने पास में ऐसे जो है उसको क्या कर सकते हैं, हम डील कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो हमने पहले तो ये सीखा था, अगर सिंगल नंबर में कोई आ जाए, जैसे अंडर रूट में 5 आ जाए, तो उसको कैसे शो करेंगे। अब इस बार जो हमने क्या सीखा, एक अपने पास में होल नंबर हो और दूसरा इरेशनल नंबर हो ना। और थर्ड टाइप जो है अपने पास में ये बन सकता है, थर्ड टाइप जो कैसे आ सकता है क्वेश्चन, थर्ड टाइप में क्वेश्चन जो है ऐसे आ सकता है कि आप जो प्रूव करो कि अंडर रूट 2 प्लस में अंडर रूट 5 ये क्या होगा अपने पास में, एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। तो इसको इरेशनल, तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत करेंगे ना। लेट अंडर रूट 2 प्लस में अंडर रूट 5 इज़ ए रेशनल नंबर। ये क्या है अपने पास में, इरेशनल नहीं है, ये क्या है अपने पास में, एक रेशनल नंबर है। ऐसा जो है हम अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आगे क्या लिखेंगे, इसको बताइए आगे क्या लिखेंगे। इफ़ दिस इज़ ए रेशनल नंबर देन वी कैन राइट डाउन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ना, है ना, यहाँ से। तो अब ना आप एक अंडर रूट को जो है उधर लेके चले जाओ और एक को क्या रख लो, आप इधर ही रख लो, ठीक है। तो यहाँ से हम एक अंडर रूट को उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या रख लिया हमने, अंडर रूट का 5 रख लिया और इधर अंडर रूट को लेके गए, तो ए अपॉन बी माइनस में कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो यहाँ पे क्या आ गया बताओ, 5 है ना, और इधर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, प्लस में अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 है ना, और यहाँ पे माइनस 2 रूट 2 ए अपॉन बी आ जाएगा, ठीक है ना। ये कैसे आ गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आया होगा कि ये कैसे आ गया ना।
यहाँ पे मैंने इसका स्क्वायर किया है, ठीक है ना। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे अब ना आप अंडर रूट 2 को इधर रख लो, बाकी सबको जो है उधर भेज दो, या इसको इधर लेके जाओ, क्योंकि ये माइनस का साइन है, इधर आते ही ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इधर आया तो 2√2 a अपॉन में b हो गया, ठीक है ना। और इस 5 को उधर लेके जाओगे तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस में 2 और माइनस में कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 2 माइनस 5, क्या मैं यहाँ पे -3 अपॉन 1 लिख सकता हूँ क्या, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या लिखेंगे बताओ, ये अंडर रूट 2 को आप यहाँ पे रखो और बाकी को इधर 2a अपॉन में b, ठीक है। और यहाँ से क्या लिखेंगे बताओ, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन में कितना b स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो है वो क्या है, इसके मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल क्या लिखेंगे, इंटू में b अपॉन 2a, ठीक है ना। इस b से ये b क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से जो है वो अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 के इक्वल कितना है बताओ, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन में कितना, ट्वाइस ऑफ ab आ गया, ठीक है ना। आई होप कि इतना समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, a3b2 ऑल आर इंटीजर्स, ये सारे के सारे क्या हैं अपने पास में, इंटीजर्स है। अगर ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं तो मुझे बताओ यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन में 2ab, ये क्या हो जाएगा अपने पास में, ये क्या हो जाएगा, इज रेशनल, है ना। ये क्या हो जाएगा अपने पास में, रेशनल हो जाएगा। और अंडर रूट 2 क्या है, अंडर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर, अंडर रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अंडर रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या लिखेंगे बताओ, इरेशनल नंबर जो है ना, इरेशनल नंबर ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, किसके इक्वल नहीं हो सकता, रेशनल नंबर के, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर कभी भी अपने पास में रेशनल नंबर के क्या नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, इधर तो अपने पास में क्या बन रहा है, रेशनल, और इधर क्या बन रहा है, इरेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने ये एज्यूम करके चला था कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है अपने पास में। तो यहाँ पे अपना कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था। तो यहाँ पे सही क्या होगा मुझे बताओ, अंडर रूट 2 प्लस में अंडर रूट 5 इज़ इरेशनल, है ना। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये अपने पास में ऐसे क्वेश्चन जो है वो आगे भी जो है बनते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक जो है वो समझ में आया होगा। अब जो है अपने पास में एक्सरसाइज जो है वो 1.5 है। एक्सरसाइज 1.5 के अंदर जो है वो ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है अपने पास में 1/√2 है ना। सबसे पहला ही क्वेश्चन जो है वो अपने पास में 1/√2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब सिंगल में आ जाए ना, ऐसे 1/√2 आ गया ना, जैसे है ना 1/√3 आ गया, 1/5 आ गया, तो इनको हम वैसे ही करेंगे जैसे अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आप इसको जो है वो परफॉर्म कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो हो जाएगा 7√5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, आगे जो है वो सेम ही क्वेश्चन है ना दोनों अपने पास में। इससे अगले वाला 6 + 2 रूट है, और यहाँ से इससे अगले वाला 3 - अंडर रूट 5 है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन तो है वो जो अभी हमने किए हैं ना वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे जो है पहले वाला ये क्वेश्चन एक में बता देता हूँ। मान लेते हैं कि ये 7√5 क्या है, एक अपने पास में रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर है तो यहाँ से क्या लिखोगे, a/b, है ना। और यहाँ से अंडर रूट 5 के उल्टू क्या लिखोगे, a/7b। अब तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, a, b और 7 ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स है ना। तो यहाँ पे a/7b ये क्या हो जाएगा मुझे बताओ, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास में, रेशनल। और अंडर रूट 5 क्या है मुझे बताओ, अंडर रूट 5 क्या है अपने पास में, इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 5 इरेशनल है, यहाँ पे इरेशनल है और ये रेशनल, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता कि इरेशनल जो है वो किसके इक्वल हो, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, इरेशनल इज़ नॉट इक्वल टू रेशनल। इरेशनल कभी भी क्या नहीं होता है, रेशनल नहीं होता है, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा एजम्पशन जो है वो गलत है। इसका मतलब 7√5 क्या है अपने पास में, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। और 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमने अभी ऐसा क्वेश्चन किया ना, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसा कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 है ना अपने पास में, 7, 8, 9, 10, 11 है ना। यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन सारे के सारे क्या है, सेम है, ठीक है। मैं एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 7 बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आपको ये प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 3 ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। लैंग्वेज जो है वो बाकी की सेम ही है, तो आप जो है वो लैंग्वेज को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, बस जो मेन कंटेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 को क्या लिखेंगे बताओ,
पी अपॉन क्यू है ना, पी अपॉन क्यू, और इसको कट पिट के जो है ये मान लो ए अपॉन कितना आया, बी आया, ठीक है ना। ए अपॉन बी लिखा तो एक को उधर भेज दो ना, जैसे √5 को इधर रखा और इसे √3 को उधर भेजो, तो √3 को इधर भेज दिया। अब दोनों तरफ क्या करो आप, स्क्वायर करो, तो इधर क्या हो जाएगा 5 और इधर क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 है ना, माइनस में 2ab, तो 2√3 ए अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस √3 इस पूरे पार्ट को उधर भेज दो, इस 5 को इधर लेके जाओ, तो ये पूरा पार्ट 2√3 ए अपॉन बी, ये तो इधर आ गया ना, और ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस में 3 माइनस में कितना हो गया 5 है ना, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और माइनस में कितना हो गया यहाँ पे 3 - 5 कितना हो गया माइनस का 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको यहाँ पे है ना, तो ये हो गया 2√3 ए अपॉन बी, ठीक है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे ये ए 2b इन सबको उधर भेज दो, ठीक है ना, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन में कितना बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये 2a जो है इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो इस b से एक पावर क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे क्या बचेगा ओनली √3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ए स्क्वायर माइनस में 2b स्क्वायर अपॉन में कितना 2ab, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे ab2 है ना, ये सारे के सारे क्या है अपने पास में इंटीजर्स है, तो ये क्या हो जाएगा रेशनल, और ये क्या है मुझे बताओ √3 क्या है अपने पास में इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे इरेशनल कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल है नहीं हो सकता, तो ऐसा जो है वो आप क्या कर लोगे, इसको ऐसे सोल्व कर लोगे, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा यहाँ से, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और बस आज में है ना, क्योंकि कल जो है वो नया वीडियो बनाएंगे, तो उसमें अगर आप लिखते हो कि ये हमें समझ में नहीं आया, तो मैं जो है वो वापस से कोई भी क्वेश्चन जो आपको वापस से समझा दूंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर अपने पास में बेस्ड ऑन हॉट्स है ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग, ठीक है ना, उस पर बेस्ट 2 क्वेश्चन है अपने पास में, तो हम जो है उनको प्रूव करेंगे ना। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि p अपने पास में कोई भी क्या है प्राइम नंबर है ना, तो √p जो है वो अपने पास में क्या होगा इरेशनल नंबर होगा, क्या होगा अपने पास में इरेशनल नंबर को, ऐसा जो है हमने क्या करना है प्रूव करना है। तो √p को जो है वो क्या अज्यूम कर लेना, सेम वैसा का वैसा है, जैसे √2 का अज्यूम किया था ना, √2 वाले को प्रूव किया था, वैसे वैसे क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर ये भी प्रूव हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे क्या करेंगे √p है ना, लेट √p को क्या अज्यूम कर लेंगे, लेट √p इज है रेशनल नंबर, √p क्या है एक अपने पास में रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो √p जो है इस बार जो आप p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि p अपॉन q p तो यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है, तो आप मान लेते हैं इसको r अपॉन s की फॉर्म में लिखा और कट पिट के जो है ये अपने पास में a अपॉन b आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, वेयर a और b दोनों के दोनों क्या है बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी दोनों के दोनों इंटीजर है, और a और b दोनों के दोनों क्या है मुझे बताओ को प्राइम नंबर है, यानी इनके अंदर कुछ भी जो है वो क्या नहीं है अपने पास में कॉमन नहीं है। और थर्ड कंडीशन क्या होगी मुझे बताओ, यहाँ से b की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल है नहीं है। अब दोनों तरफ इधर स्क्वायर करेंगे तो मुझे बताओ यहाँ पे √p इक्वल टू a अपॉन b, इधर स्क्वायर किया ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा p, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। याद रखना p है ना, p जो है क्या अपने पास में एक p प्राइम नंबर है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में दे रखा है प्राइम नंबर, p अपने पास में क्या है प्राइम नंबर है। तो मुझे बताओ यहाँ से क्या लिखेंगे इसको है ना, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन में कितना a स्क्वायर, तो यहाँ पे मुझे बताओ क्या b स्क्वायर की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या a स्क्वायर अपॉन p है ना। तो यहाँ पे a स्क्वायर को अगर p से डिवाइड किया तो b स्क्वायर है, इसका मतलब a स्क्वायर किससे डिविजिबल है, p से डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p, अगर a स्क्वायर p से डिविजिबल है तो क्या लिखेंगे बताओ, a इज ऑल्सो डिविजिबल, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई p, a भी जो है अपने पास में किससे डिविजिबल होगा, p से डिविजिबल होगा, ठीक है ना, a भी अपने पास में p से डिविजिबल होगा। तो अगर मैंने a को जो है वो p से डिवाइड किया है ना, तो अपने पास में मान लेते हैं ये कितना आया c आया, ठीक है ना। a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ pc, ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, ये 1 की वैल्यू जो है इसमें रिप्लेस करो, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, a स्क्वायर अपॉन p है, तो a स्क्वायर अपॉन में p, और a की जगह वैल्यू क्या लिखेंगे बताओ pc, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया p स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन में p, ठीक है ना, इससे ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे pc स्क्वायर और यहाँ पे b स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है c स्क्वायर रखो और p को उधर भेजो, तो ये हो गया b स्क्वायर अपॉन p इक्वल टू कितना आया c, b स्क्वायर को p से डिवाइड किया तो c टाइम गया वो है ना। तो मुझे बताओ b स्क्वायर p जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताओ, b स्क्वायर इज डिविजिबल
डिविजिबल बाई पी। बी स्क्वायर अगर पी से डिविजिबल है तो मुझे बताओ क्या है अपने पास में, बी भी पी से डिविजिबल होगा क्या? बी इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई पी। बी भी अपने पास में किससे डिविजिबल है? पी से डिविजिबल है ना। तो मुझे बताओ बी भी पी से डिविजिबल है और यहाँ पे ए भी जो है वो किससे डिविजिबल है? पी से डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाई पी, है ना। दोनों के दोनों किससे डिविजिबल है? पी से डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर। ए और बी जो है अपने पास में क्या नहीं है? को प्राइम नंबर नहीं है ना। और को प्राइम नंबर नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, है ना, इसका मतलब क्या हो गया? अंडर रूट पी जो है वो अपने पास में क्या है? अंडर रूट पी इज़ इरेशनल नंबर। अंडर रूट पी क्या हो जाएगा अपने पास में? इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे जो है हम इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन ये है अपने पास में, अंडर रूट आपको ये प्रूव करना है, अंडर रूट पी प्लस में अंडर रूट क्यू जो है ये कैसा नंबर होगा? एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। तो ये वैसा का वैसा क्वेश्चन है जो हमने किया था ना, जैसे अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 5 किया था, है ना। और भी बाकी क्वेश्चन किए, तो इसी के टाइप का क्वेश्चन ये है, ठीक है। अगर आप फिर भी चाहते हो कि मैं इसको समझाऊँ, चलो मैन क्वेश्चन जो है इसका सोल्व कैसे करेंगे वो मैं समझा देता हूँ, बाकी लैंग्वेज जो है आप लिख लेना ना। तो अंडर रूट पी प्लस में अंडर रूट क्यू, इसको क्या लिखेंगे बताओ? ए अपॉन बी लिखेंगे, ठीक है ना। इसको एक को उधर लेके जाओ, तो इसको उधर लेके गए तो ए अपॉन बी, है ना। और माइनस में कितना हो जाएगा? अंडर रूट क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर तो पी रह गया और इधर स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, है ना, प्लस में क्यू और माइनस में 2 ए बी, है ना। तो ए की जगह तो अंडर रूट और इसकी जगह ए अपॉन बी हो जाएगा। इस वाले पूरे पार्ट को जो है उधर लेके चलो, बाकी इधर लेके आओ, ठीक है ना। तो ये इधर आएगा तो 2 अंडर रूट क्यू और ए अपॉन बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस में क्यू माइनस में पी, ये पी इधर आया तो माइनस में हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है 1 और यहाँ पे भी 1 लिख देंगे हम, ठीक है। तो आगे जो है इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से ये क्या हो गया बताओ? क्यू स्क्वायर प्लस में यहाँ पे बी स्क्वायर क्यू माइनस में पी बी स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहा बताओ? 2 अंडर रूट क्यू और यहाँ पे ए अपॉन बी, तो इस ए अपॉन बी और इस 2 को जो है वो पूरा इधर लेके चलेंगे। तो अंडर रूट क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर क्यू माइनस में बी स्क्वायर पी, है ना। और अपॉन में कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर और यहाँ पे ये बी डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, और ये 2 जो है वो इधर के कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर क्यू माइनस में बी स्क्वायर पी और अपॉन में कितना हो जाएगा? 2ab हो जाएगा, 2ab। यहाँ से आप क्या लिख देंगे बताओ, है ना? 2ab बी पी क्यू, है ना। ये सारे के सारे क्या है? रेशनल नंबर है। और ये अपने पास में क्या है मुझे बताओ? इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। अंडर रूट में ये इरेशनल नंबर है ना। तो यहाँ पे ये दे रखा था ना, ये प्राइम नंबर है। और अगर ये अंडर रूट में प्राइम नंबर आता है तो अपने पास में अभी जो हमने ये क्या प्रूव किया है कि अगर अंडर रूट में प्राइम नंबर होता है तो वो कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है क्या लिख देंगे हम? ये तो अपने पास में इरेशनल हो गया, आगे लैंग्वेज जो पीछे वाले की जैसे की जैसी है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा अपने पास में? रेशनल हो जाएगा। और इरेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम? अंडर रूट पी प्लस में अंडर रूट क्यू, ये क्या हो जाएगा अपने पास में? इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आया होगा, ठीक है। और आगे जो है इसके बाद में जो है वो हम इरेशनल नंबर वाले सारे क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट हो चुके हैं अपने पास में, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगे कि एक्सरसाइज 1.5 के अंदर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप जो है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको वो क्वेश्चन जो है वापस से बता दूंगा, ठीक है। आई होप कि आप मेहनत कर रहे हो और पढ़ते रहो। और बाकी देखो धीरे धीरे जो है वो एक टाइम ऐसा आएगा जब छोटे छोटे चेंजेस जो होते हैं वो लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आते हैं, ठीक है। जैसे लाइफ में मान लो एक जैसे कोई भी छोटा सा एक काम हो तो वो ज़िंदगी में जो है वो बहुत टाइम तक अगर आप कंटिन्यूसली करोगे तो वो आपकी लाइफ में ज़रूर चाहिए। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इफेक्ट लाएगा, अगर आप कुछ भी नेगेटिव कर रहे हो, है ना, तो वो आपकी ज़िंदगी में जो जैसा नेगेटिव इफेक्ट लेके आएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहो धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूसली, आधे घंटे पढ़ो, है ना। 1 घंटे नहीं हो पा रहा है, अगर 1 घंटे भी आधे घंटे भी नहीं पढ़ा रहा है तो 10-20 मिनट पढ़ो, है ना। बट कनेक्टेड रहो, है ना। कनेक्टेड रहने से क्या होता है? अपना नॉलेज जो है
वो वापस से क्या होता रहता है, अपडेट होता रहता है, ठीक है ना। कभी कुछ हम गलत करेंगे तो वहाँ से वापस से सीखेंगे। तो आप क्विट मत करना है ना, बीच में क्विट नहीं करोगे तो आप सीखते जाओगे, डेफिनेटली आप सीखोगे ही, ठीक है ना। और लर्निंग जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना, ऐसा नहीं है कि मान लो आप कोई टीचर जो होता है वो सीखता नहीं है। ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, वो अभी जाके जो है वो मेरे क्लियर हो रही है, या फिर मेरे जो है वो मान लो अभी जो मुझे पढ़ने को मिल रही है। तो लर्निंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी, है ना। आप भी सीखते हो और आपके थ्रू कभी कभी टीचर्स भी सीखते हैं ना, और बाकी ये सब जो है लर्निंग जो है चलती रहती है। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, सावधान रहिएगा, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए शब्बा खैर। ओके, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।